Good evening, class. Am I audible clearly? Please let me know my voice is clear or not and make sure that my screen is also visible. Okay, then. So, let's start with lesson number 16 for standard 5th and then we will move to standard 6th. Okay. So, who will do this work? So, have you seen such scenes around you? आपने कभी देखा है कचरा उठाते हुए लोग, then गटर साफ करते हुए लोग? You must have seen, right? I have seen many times. What about you? Didn't? Okay. So, like, अगर नहीं देखा है तो see here only, okay? So, have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? Why do we think that people need to do this kind of work? So, क्या सिर्फ इन्हीं लोगों को ये सारे काम करने चाहिए? Yes, their duty if they are doing this thing. It is to clean and this is their job, but what is our responsibility towards the cleanliness of our surrounding? How we can keep our surrounding clean? Shreyanshi, what efforts you can take to keep your surrounding clean? We can start from some small things like whatever packaged food we are eating, we should not throw the package on the road. We can put it in a dustbin, right? Yes, very good. But you can throw the dirt in dustbin. Now, our friend spoke to some staff to who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. जो cleaning job करते हैं like sweeping and all these pictures we have seen. तो उनसे कुछ responses मिले हैं. The question was के since when you have been doing this work? So the answer was about 20 years since I completed my studies. See, they have completed their studies. So उसके बाद उन्होंने ये काम करना शुरू किया. Why did you not study further? You could have got some other job. You need money for studies, and even after that, most of our people continue to do this kind of work. तो जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं किया, आपको कोई और अलग सा जॉब मिल जाता, तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है और हमारे बहुत सारे लोग यही काम करते हैं. व्हाट डू यू मीन? उसने पूछा इसका क्या मतलब है कि हमारे बहुत सारे लोग यही काम करते हैं. सिंस अवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ अवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job. So they have to do this work. तो उन्होंने क्या बताया, हमारे पर दादाजी और उनसे भी पहले से हम यही काम कर रहे हैं. अगर हमें कॉलेज की डिग्री मिल भी जाती है तभी हमें दूसरा कोई काम नहीं मिलता, इसलिए हमें यही काम करना पड़ता है. Why is that so? तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है. तो उन्होंने बताया कि दैट इज द वे इट इज इन द एंटायर सिटी. ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम अवर कम्युनिटी. इट हैज ऑलवेज बीन सो. तो उन्होंने बताया कि यस, ये हमारी कम्युनिटी के लोगों को यही काम करना पड़ता है एंड ये पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है. सो अगर आपको कोई ऐसा मिले जो क्लीनिंग जॉब कर रहा हो आपके घर के आजू बाजू या फिर आपके स्कूल के आजू बाजू, तो यू कैन आस्क हिम और हर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि वो काम कब से कर रहे हैं, हाउ मच दे हैव बीन स्टडीड, have they tried to look some other work, then did elder in the family also was doing the same work, and what kind of difficulties do they face in doing this work. Okay, now what are the different kind of work being done in this drawing? बताइए इसमें कौन कौन से काम चल रहे हैं. श्रेयांशी, you can put on your mic to tell me in this picture what kind of work is being done. कौन कौन क्या क्या कर रहा है. गार्बेज कलेक्टर,
school, तो peon is guarding, teacher is teaching, that guy is cleaning the gutter, gardener is doing the gardening, that lady is selling some groceries. Then policeman is standing to control the traffic. Some lady, that lady is selling the she's a green grocer. She's selling vegetable. Here, a girl is sweeping. Lady is sweeping on the road. That doctor is checking for patient. Here, painter is painting. Okay, many kind of work is being done here. So, if you were asked to do any five jobs shown in this picture, which would you choose and why? अगर इसमें से कोई भी फाइव जॉब्स आपको करने बोले जाए तो आप कौन से फाइव जॉब्स चूज करोगे एंड क्यों करोगे? आप एक भी बताओगे तो चलेगा, बताइए। जो भी मैंने अभी आपको बताया है, डॉक्टर है, टीचर है, मेनी मेनी थिंग्स आर देयर, तो उसमें से आप कौन सा चूज करोगे? बोलो। बोलिए, everyone can take part into this. Riddhi, Aryan, you can also tell the answer. It is a community type of lesson, तो आप भी इसमें पार्ट ले सकते हो। जो भी मैंने आपको अभी बताया उसमें से कौन से जॉब करना आप पसंद करोगे? वेरी गुड श्रेयांशी। ओके, नाउ what kind of work or jobs do people not want to do? What do you think? लोगों को इसमें से कौन से काम करना पसंद नहीं आता है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस? ऐसे कौन से जॉब्स है इसमें से? लाइक गटर साफ करना, राइट? कोई भी तैयार नहीं होगा, कैन वी इजीली डू दैट थिंग? नो। So, who does this kind of work? Why do people do this kind of work that others do not want to do? तो ये काम कौन करता है जो दूसरे नहीं करना चाहते? वो लोगों को वो काम क्यों करने पड़ते हैं? सी, what would happen if nobody did this work? If nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? अगर आपके स्कूल के सामने या फिर घर के सामने जो भी कचरा पड़ा है वो पूरे वीक तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया, किसी ने उसको डिस्पोज नहीं किया, तो क्या होगा? देयर विल बी अ heap of garbage. Mosquitoes will grow on that, many other insects will grow on that, and it will spread diseases. Yes, we can go through many health disorders. Think of some ways, machines or other things, so that people would not have to do the work they don't like to do. अगर हम इसमें कुछ मशीन्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोगों को ये चीजें करनी नहीं पड़ेगी, राइट? उन्हें हाथ से करने की जरूरत नहीं अगर ये चीजों के लिए मशीन्स इन्वेंट की जाए। यहाँ पे बच्चों ने कुछ ड्राइंग निकाली है सो दैट उन्होंने ऐसी मशीन्स ड्रॉ की है जो ये क्लीनिंग का काम करेंगी। Do you think that anyone has ever tried to change this situation? Yes, many people have tried. बहुत लोगों ने ये situation change करने का प्रयास किया है. People are trying even today, but it is not easy to change this. आज भी लोग ये चीज कर रहे हैं to try to change this situation, but it is not easy. One such person was Mahatma Gandhi. ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महात्मा गांधी. Gandhiji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhiji when he was young. This incident is from Narayan's book. तो गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई नाम के. उनके पुत्र नारायण वो भी गांधी जी के साथ रहते थे. तो नारायण ने जो बुक लिखी थी उनसे एक स्टोरी दी गई है हमें. When Narayan was about 11 years old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati ashram.
Like everyone else in the ashram, he had to do he had to do various kind of work. One of his job was to teach the guests how to clean the toilet. In those days, the toilets were not what we now know today. There used to be holes under which basket were kept. People sat on the hole. Later, the basket had to be lifted by hand to be emptied. सी तो नारायण जब 11 साल के थे वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम में सबको अलग अलग तरह के काम करना पड़ता था। तो नारायण का काम ये था कि वो जो गेस्ट आते थे उनको सिखाए कि टॉयलेट्स किस तरह क्लीन किए जाते हैं। तो उस वक्त जो भी टॉयलेट्स हम अभी यूज करते हैं वैसा नहीं था। तब एक होल हुआ करता था और उस होल के नीचे बास्केट रखा जाता था। लोग होल पे बैठते तो थे टॉयलेट के लिए, लेकिन वो बास्केट हाथ से उठाकर उसको क्लीन करना पड़ता था, खाली करना पड़ता था। इट वाज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, but in Gandhiji's ashram every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. No one was excused from this task, not even guests. Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashrams because of this. तो अ, तभी उन दिनों में भी कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर समाज के लोग को ये काम करना पड़ता था, लेकिन गांधी जी के आश्रम में सबके लिए ये काम कंपलसरी था कि अगर टॉयलेट खत्म हो गया है तो उठाना है उस बास्केट को और कंपोस्ट पिट में जाके एम्प्टी करके आके क्लीन करके रख देना है। गेस्ट जो भी आते थे वहां पे उनको भी ये कंपलसरी होता था। बहुत जन ये काम करने से इतराते थे तो वो उसको अवॉइड कर देते थे। कुछ लोग तो इस काम की वजह से आश्रम छोड़ के भी चले जाते थे। Some years later, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in Maharashtra. Gandhiji, Mahadev Bhai, and others started to clean the toilet in the village. They did this for some month. One morning, a man coming from toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." When Babla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." तो एक दिन जब कुछ साल बाद गांधी जी वर्धा जो महाराष्ट्र में आता है उस गांव में रहने के लिए गए और उन्होंने और महादेव भाई ने टॉयलेट्स क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन एक आदमी, गांव का आदमी टॉयलेट से बाहर आके महादेव भाई को कहने लगा कि जाओ वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, जाके क्लीन करो। नारायण को ये देख के बहुत गुस्सा आया, लेकिन गांधी जी ने उसे बताया कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये बहुत सीरियस मैटर है और इसे हमारे समाज से मिटाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. तो जो भी ये काम करते थे उनको अनटचेबल, लोअर कास्ट ऐसे माना जाता था। He asked, "What is the use of this use what is the use if the village people do not change their thinking? They have become used to someone else doing this work for them." Gandhiji replied, "Why? Why don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job." Little Narayan was not convinced. He again argued, "Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson." Gandhiji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. तो नारायण को गुस्सा आया और उसने बोला कि लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को अपनी विचार बदलने चाहिए कि ये उनका भी काम है। ये वो क्यों ऐसा समझते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम है और उसी को करना है। क्लीनिंग जॉब इज गुड, तो गांधी जी ने कहा तो पर्टिकुलर कम्युनिटी जब ये कर रहे तो वो ठीक है, वो भी उस क्लीनिंग जॉब को अच्छी तरह से सीख रही है। लेकिन नारायण वॉज नॉट कन्विंस। वो फिर से आर्ग्यू करने लगा कि जो गंदगी करते हैं उनको भी तो लेसन लेना जरूरी है क्लीनिंग का, तो उनको भी करना चाहिए।
तो लेटर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने गांधी जी का पाथ को अपनाया. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? क्यों किया होगा उन्होंने क्लीनिंग का जॉब? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है? Okay, no fifth standard student is here and I'm teaching like that. Okay. बोलो श्रेयांशी, what do you think? क्यों लगता है आपको कि गांधी जी ने ये क्लीनिंग का काम क्यों किया होगा? So that people can get inspired from them. Okay. Do you know any such people in your area who try to help others in solving their problem? आपको कोई पता है आपके एरिया के किसी का नाम जो किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता हो? Okay, can you name that person? Okay. अगर आप गांधी जी के आश्रम में होते और आपको ये काम करना पड़ता, तो क्या आप ये काम करते? What would you do? Yes, अगर जो भी काम मैंने आपको बताया, that the guest also has to do the same work. So, क्या आप वो काम कर पाते अगर आपको करना पड़ता तो? Now, childhood story. This story is almost 100 years ago old. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holiday. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair? Wondered little Bhim. Later, this little Bhim was known as Bhim Rao Baba Sahib Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Sahib fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Sahib. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो जब 7 साल के थे, छोटे थे, तो वो महाराष्ट्र के गोरेगांव में उनके पापा के साथ हॉलीडे स्पेंड करने गए थे. तब एक बार्बर, एक नाई, एक रिच फार्मर के बफेलो के बाल काट रहा था, भैंस के बाल काट रहा था. ओके. तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने सोचा कि मैं भी इसे हेयर कट लेता हूँ. तो बार्बर ने क्या रिप्लाई किया, अगर मैंने आप तुम्हारे बाल काटे तो मेरा रेजर और मैं गंदा हो जाऊंगा. सो छोटे भीम ने सोचा, अरे ह्यूमन हेयर से एनिमल्स के बाल तो ज्यादा गंदे होते हैं, तो क्या मेरे बालों से इसका सच में ये सब गंदा हो जाएगा? ही वॉज लिटिल, तो उन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी कि अनटचेबिलिटी वगैरह जो नहीं समझ में आना ही चाहिए, वी शुड नॉट फॉलो दैट थिंग. तो उन्होंने जब बड़े हुए वो, तो उन्होंने वो सारी चीजें समाज में से हटा दी. एंड इसलिए स्वतंत्र भारत जब हुआ तो हमारा संविधान उनके खुद के हाथों से लिखा गया. ओके. सो अ कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे. Question and answers are there. See, Hetal. I'm Hetal and this is Meena. We both study in class 3. Question. What all do you do in school, Meena? We clean the ground. Question. Do all the children clean? Hetal. No, not all.
Meena. We also have to clean the toilet. We do it on different days. I clean on Monday, she does on Tuesday, and she on Wednesday. All the children from our community do this. See, again, the reality of today it is we have to carry 20 bucket of water for this. We have to sweep and wash. Why only you? Why not all the children? Only we have to. If we don't, we get beaten. सी और ये सच्चाई है, ये एक इंटरव्यू है जो इंडिया अनटच की डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। तो बच्चों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं आज भी। दिस इज द रियलिटी कि आज भी अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जा रहा है कुछ रीजन्स में, जहाँ पे वो लड़कियां बता रही है कि उनको स्कूल में जाके टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करने पड़ते हैं। दूसरे कम्युनिटी के बच्चे नहीं करते लेकिन उनको करने पड़ते हैं। सो टेल मी, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल एंड व्हाट ऑल हैज टू बी क्लीन? आपके स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है? Write your answers in the chat box or you can put on your mic. Yes, there is a cleaner in your school. Okay, she cooks and clean. Okay. Okay. सो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का एक काम फिक्स है, लाइक लोअर कम्युनिटी उन्होंने ये करना चाहिए, यहाँ पे ये फिक्स किया गया है, ये फॉलो करना चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस शुड बी फॉलोड और नॉट? बोलो कि यही कम्युनिटी के बच्चे या फिर यही स्पेसिफिक कम्युनिटी के ये लोग ये काम करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे? नो, इट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। तो you as a children can make this change when you will grown up, right? Yes. Okay. Okay, so here fifth standard is done. Now sixth standard, we will start with your new lesson as we have finished one of the lesson in the previous lecture, right? So fifth standard, do you have any doubt? Fifth standard, do you have any doubt? Okay, totally understood. So whatever you have understand from the whole lesson, and it was a kind of story, right? Two stories we have learned. So can you explain or can you write this in your own language, what you have studied, what you have learned? क्या आप लिख सकते हो in your own language? Just 5 to 6 lines are it is enough. Only 5 to 6 lines are enough. Can you write? Please try to write Arya, Shreyanshi, and after that you can show me. Okay, now sixth standard, you pay attention. Okay, so we have learned electricity and circuits we have learned, right?
So can we go for 15 air around us? Is it okay if we go for 15th air around us? Aryan, what about you? Riddhi said yes. Okay, fine. It should be useful. अगर हो चुका है previous exam में and नहीं आने वाला है तो it is of no use ना. तो 15th lesson अभी तक नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम में, right? Am I right? Then only we can go for the same. Yes, am I right? Okay. Okay, let's start. So air around us. So can you name some component of air? क्या आप बता सकते हो एयर के कुछ कंपोनेंट्स? क्या क्या होता है हमारी हवा में? What are the components that present in air? Yes, which gases are present in air? Oxygen, yes. And yes, carbon dioxide. Nitrogen. Okay. And some inert gases are also there, right? Helium, yes, this type of inert gases are there. And dust and many small particles are present in that. Okay. Now, so we have learned that all living things require air, right? But have you seen air? Yes, have you seen air? आपने कभी हवा देखी है? But you must have feel it. देखी नहीं है, but आपने feel किया है? Yes, you must have, right? Okay. So, when you notice it when the leaves of trees rustle or the clothes hanging on the clothesline sway. तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे हवा है और पेड़ के पत्ते हिलते हैं, जो हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं वो हवा से हिलते हैं, राइट? पेजेस ऑन द ऑफ द ओपन बुक फ्लटर्स. आपने अगर बुक ओपन रखी है तो हवा से वो पेजेस फ्लटर होते हैं. सो मूविंग एयर की वजह से हम हमारा पतंग भी हवा में बहुत अच्छी तरह से उड़ा सकते हैं, राइट? सो winnowing is the most effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off rooftops. जब storms आते हैं, ओके, बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, बहुत जोर जोर से हवाएं चलती है. अब और इतनी जोर से चलती है हवाएं कि घरों के छत उड़ जाते हैं कहीं कहीं पे, और ट्रीज डायरेक्टली रूट से टूटकर नीचे गिर जाते हैं. आपने कभी इस तरह की फिरकी से खेला है? यस, you must have in your childhood, right? So there are different types of फिरकीज अलग अलग तरह की होती है और हम अपनी खुद की भी बना सकते हैं. किस तरह से? यहाँ पे 15.2 में दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस. See, here are some instructions given. See, hold the stick of firki and place it in different direction in an open area. Just a minute. Okay. इस फिरकी को आप ओपन एरिया में अलग अलग डायरेक्शंस में रख सकते हो. मूव इट अ लिटिल back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes the फिरकी rotate? ये फिरकी क्यों घूमती है? हम अलग अलग डायरेक्शन में भी रखेंगे तो भी ये फिरकी घूमती है. Why does it rotates? Because of किसकी वजह से ये फिरकी घूमती है?
wind, air. Yes, good. Moving air actually. So weathercock. वेदरकॉक आपने देखा होगा या नहीं होगा, ये जो वेदरकॉक है ये डायरेक्शंस दिखाता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है वो उस तरह पे मुड़ जाता है. ओके. सो एयर इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. नाउ क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए. डू यू हैव एनीथिंग इनसाइड दैट? आपकी मुट्ठी में कुछ है, अगर आप उसको बंद करते हो तो एट दिस टाइम. Okay, nothing but air. Take an empty open bottle. Is it really empty or does it have something inside? Turn it upside down. Is something inside it now? अगर आप empty bottle को ले रहे हो और उसको turn down कर रहे हो तो उसमें कुछ है या नहीं, ये हमें नहीं पता चलता है. Now if you dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown here, what will happen? वाटर, आप अगर बॉटल का ढक्कन खोल के पानी से भरे हुए बर्तन में उसको रख देते हो, ऊपर से नीचे लाते हो तो पानी अंदर नहीं जा पाता है. जब आप उसको थोड़ी सी टिल्ट कर देते हो तो यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो जाता है और या फिर बबली साउंड भी सुनाई देता है. सो उससे क्या पता चलता है? इट इज एयर. इट इज एयर इनसाइड दैट बॉटल. इट वॉज प्रेजेंट इनसाइड दैट बॉटल. The bottle was not empty at all. वो खाली नहीं थी. In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. जब आप उसको उल्टा करते हो फिर भी उसमें हवा भरी हुई रहती है. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. जब आपने उल्टा करके पानी से भरे हुए बर्तन में बॉटल को डाला तो पानी बॉटल के अंदर नहीं गया. But when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. जब आपने बॉटल को टिल्ट किया तो वो एयर, जो हवा अंदर थी, वो बबल के रूप में बाहर आई. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस. एंड जो भी एयर ने एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था वहां पे पानी भर गया. दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेस. इससे हमें क्या पता चलता है? हवा स्पेस ऑक्यूपाई करती है. It fills all the space in bottle. It is present everywhere around us. Air has no color. No one can see through it. And it is transparent. Okay? Air को color नहीं होता and वो transparent होती है. Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of earth and it is called atmosphere. हमारे अर्थ के आजू बाजू अर्थ गिर्द एक लेयर ऑफ एयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एज वी मूव हायर इन एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर. जब हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर तो हम एयर कम कम हो जाती है. इसलिए जो माउंटेनर्स है वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं. एंड आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स में भी ऑक्सीजन वाले मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं. क्या आप बता सकते हो क्यों किए जाते हैं? ऑक्सीजन लेस होता है, लेकिन क्यों होता है? ऑक्सीजन कम क्यों होता है वो बताइए. As we go upward, the air becomes rarer. हवा कम कम हो जाती है, इसलिए हमें वहां पे जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाता, इसलिए ऑक्सीजन मास्क आर गिवन. व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? जैसे कि आपने बताया कि क्या क्या होता है. सो वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके. 18th सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि हवा सिर्फ एक सब्सटेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस.
सो कौन कौन से गैसेस होते हैं वो वन बाय वन उनको पता चले। पहला मेजर कंपोनेंट था वाटर वेपर। वी हैव लर्न दैट वाटर एयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड हमने देखा भी है कि व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कूल सरफेस इट कंडेंसेस and drop of water appear on cool surface. Yes, the presence of water vapor in air is important for the water cycle in air nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कंडेंसेशन होता है और पानी नीचे आता है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का। देन ऑक्सीजन। ओके, हम क्या करेंगे, दो स्मॉल कैंडल लेंगे सेम लेंथ के ऑन अ टेबल और दोनों को जला देंगे। कवर वन ऑफ द कैंडल विथ इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुली। एक को हम ग्लास टम्बलर से कवर कर देंगे और दोनों का देखेंगे। दोनों दोनों जलना कंटिन्यू रखती है या फिर कोई बंद हो जाता है। तो ये क्या देखेगा हमें, जिसको हमने टम्बलर से कवर किया है वो थोड़ी देर बाद जलना बंद कर देती है। उसके और जो पहली दूसरी वाली कैंडल है जिसको हमने टम्बलर से नहीं ढका है वो जलना कंटिन्यू करती है। क्या रीजन हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकता है वहां पे। पहली वाली कैंडल वैसे ही जलती रही है जिसमें टम्बलर नहीं रखा है और जिसमें टम्बलर रखा है वो बुझ गई। व्हाई डज दिस हैपेंस। यस, एयर टम्बलर में उस जो भी मोमबत्ती थी, कैंडल थी, उसको एयर नहीं मिली, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए वो बुझ गई। तो ये पता चलता है कि ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर जो भी कंबशन होता है, जलने के लिए, जलने की क्रिया के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट हैव observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time. So it seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. थोड़ा ही बचा था ग्लास टम्बलर में वो, इसलिए जब तक वो कंपोनेंट बचा था तब तक वो कैंडल जली और बाद में बुझ गई। सो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर। दूसरी कैंडल को बार बार एयर का सप्लाई मिलता ही जा रहा था, तो वो सपोर्ट करने वाला, बर्निंग को सपोर्ट करने वाला एलिमेंट था, कंपोनेंट था एयर का, ऑक्सीजन। ओके, नाउ नाइट्रोजन के बारे में सीखेंगे। थर्ड एक्टिविटी में हमने देखा कि ग्लास बॉटल में एयर प्रेजेंट थी इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। ओके, this indicate that the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. ऑक्सीजन तो खत्म हो गया लेकिन दूसरे कंपोनेंट तो थे, तो वो था कैंडल के बर्निंग के लिए सपोर्ट ना करने वाला नाइट्रोजन। देन कार्बन डाइऑक्साइड। In closed room if there is some material that is burning you may have felt suffocation. अगर रूम बंद है और वहां पे कुछ जल रहा है तो हमें सफोकेट होता है। गैस पे भी अगर कुछ जल जाए और हमारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद है तो वी में फील सफोकेटिंग, राइट। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेटिंग इन द रूम। उस रूम में जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। Carbon dioxide makes up a small component of air around us. Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remain of the crop which pollute our surrounding. तो ये सारी चीजें जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो हमारा जो सराउंडिंग है वो पोल्यूट हो सकता है और उसके हजार्डस इफेक्ट हमें ही
झेलने पड़ते हैं। इसलिए कार्बन प्रोड्यूस करने वाले जो भी आप जलाओगे इससे कार्बन प्रोड्यूस होगा, तो वो जलाना या फिर किसी और तरह से डिस्पोज करना है आपको। वी हैव टू अवॉइड इट इट्स डिस्पोजल बाय बर्निंग इट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एक प्रेजेंट होता है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। आप हमें पता है कि जब कुछ जो भी फ्यूल है, ईंधन है, वो जलता है, गाड़ियों में डालने वाला पेट्रोल हो या फिर चूल्हे में जलने वाला लकड़ी हो, किसी को भी जलाने के बाद स्मोक प्रोड्यूस होता है। सो स्मोक में फ्यू गैसेस होते हैं, फ्यू डस्ट पार्टिकल होते हैं जो बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इसलिए चिमनीज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई हुई होती है। ये क्या करती है, हार्मफुल गैसेस को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है क्योंकि वो बहुत ऊंची होती है, लेकिन ये बर्ड्स के क्लोजर चली जाती है इन द स्काई। सो ये उनको बहुत हानिकारक हो सकती है। ओके, गॉट टिल हियर सिक्स स्टैंडर्ड, यहाँ तक समझा है? ओके, सी now find a sunny room in your school or home, close all the door and window with curtain pulled down to make the रूम डार्क। सनी रूम को लेना है और उसमें सब बंद कर देना है, कर्टेन वगैरह, जिसमें जिससे अंधेरा हो जाए। अभी ओपन द डोर और द विंडो फेसिंग द सन जस्ट लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। थोड़ा सा विंडो या दरवाजे को ओपन करना है, जैसे कि थोड़ा सा मतलब एक स्लिट से जो भी हमारा सनराइज है वो अंदर आए। तो आप देखोगे जो भी बीम ऑफ लाइट है उसमें छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ओके, during the winter you might have observed similar beam of sunlight filter through trees in which dust particle appear to dance merrily around। विंटर सीजन्स में भी ट्रीज के थ्रू हमें ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। तो ये इससे ये प्रूव होता है कि एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। As we inhale air, when we breathe through our nostril, fine hair and mucus are present inside the nose। हमारी नाक में छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ये डस्ट पार्टिकल को हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं। ओके, जब हमें आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा हमें मुंह से सांस लेने से मना करते हैं खुली हवा में। क्यों? क्योंकि अ, अगर हमारे मुंह पे हेयर्स एंड म्यूकस सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते तो वो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से नहीं रोक सकते, हमारा नाक रोक सकता है इसलिए। ओके, वी मे कंक्लूड देन दैट द एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। हम ये कह सकते हैं कि हवा में गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। गैसेस कौन कौन से होते हैं? मेन गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस आर देयर। ओके, see this much of nitrogen and this much of oxygen is present in air, and other carbon dioxide, water vapor and other gases are very less in the air. Okay, so there may be some variations in composition of air from place to place। अलग अलग हवा में अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं, बट एयर कंटेंट 99 जो भी पूरा 99% होता है उसमें से ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से ही वो भरा हुआ होता है पार्ट। ओनली 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस अलोंग विथ वाटर वेपर रहते हैं उसमें। ओके, गॉट टिल हियर? यस, Aryan, understood? Yes? Okay, so rest part we will be doing in the next lecture. Okay? Next part हम next lecture में करेंगे. So we you all can leave now. Bye bye everyone.
Shreyanshi, have you written whatever I have asked you to write? Oh, I was just asking. मैंने ये बोला था कि जो भी आपको समझ में आया है that you can write. Okay. If you want references, I can show you afterwards in the next lecture. Okay. Now you can leave. Bye.